قرآن علمائے حق أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي ساعة صدق الله مولانا وعلى رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله مرکز حق و صداقت کی طرف لوٹ چلیں. مرکز حق و صداقت کی طرف لوٹ چلیں. اپنے دین اپنی شریعت کی طرف لوٹ چلیں. مرکز حق و صداقت کی طرف لوٹ چلیں. اپنے دین اپنی شریعت کی طرف لوٹ چلیں. نہیں ملنے کی کہیں کفر و دلالت سے ہوا. نہیں ملنے کی کہیں کفر و دلالت سے اما. آؤ دربار رسالت کی طرف لوٹ چلیں. آؤ دربار رسالت کی طرف لوٹ چلیں. حافظ صاحب کے اعلان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ لوگ مشہور طور پر یہاں آئے تو کتنی دیر تک رہیں گے تب تو ٹھیک ہے. میں نے ایسا محسوس کیا ممکن ایسا تھا, لیکن ان کے اعلان سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ کچھ وقت آپس میں آپ لوگوں نے ایسا تو بھی میں نے جو قرآن مقدس کی ایک سورت پڑھی ہے وہ تبرکاً پڑھی ہے. ورنہ کچھ لوگ پہلے ہی سوچے کیا جب اتنی لمبی آیت پڑھے ہیں تو پتہ نہیں کیا گھنٹہ تک بات نہیں. وہ وقت کی مناسبت سے میں نے تبرکاً وہ تلاوت کر لی ہے اور اس کے تعلق سے کچھ دو چار باتیں بھی بتاؤں گا, لیکن تقریر اتنی ہی کروں گا جتنی آپ کہیں. اب آپ پر ہے کتنی دیر تک بیٹھنا ہے. ابھی دیکھیے میں کوئی نیا مقرر نہیں ہوں, نہ یہاں کے لیے نہ آپ لوگوں کے لیے. 1/4 صدی کا ساتھ ہے ہمارا. 4 صدی سے ہم اور آپ ساتھ ہیں. اس میں کتنے وہ لوگ ہیں جو ہمارے بعد پیدا ہوئے. جب سے ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں یہ بوڑھے لوگ ہمیں جانتے ہیں. تو ہم بڑی بے تکلفی سے پوچھ رہے ہیں کتنی دیر تک آپ کو یہاں وقت دے سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, جو بھی آپ آسانی سے آپ بیٹھے کہ خواہ زبردستی کھانا اتنا ہی کھلاؤ جتنا ہضم ہو سکے. اتنا نہ کھلا دو تو اس سے کھائی آنے لگے اور بدہضمی ہو جائے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد ہی آپ کو رخصت کر دیں. چلیے ٹھیک ہے, آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ آپ
چلے گا نا؟ یہ تو زیادہ نہیں ہونا چاہیے. چلیے سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والے کرام اجمعین وبارک وسلم ابدا. سلسلہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ذرا ایک سائڈ میں ایک طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے جشن ختم قرآن، یا کہہ لیجیے جشن نزول قرآن، اس لیے کہ آج ہی کی رات میں قرآن نازل ہوا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مخصوص مقام ہے جسے بیت العزت کہا جاتا ہے. تو لوح محفوظ سے یہ پورا کا پورا قرآن مقدس آج ہی کی رات میں بیت العزت میں نازل کیا، وہاں آیا سب اکٹھائی، اور وہاں سے پھر 23 برس کی مدت میں آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ضرورت حالات کے مطابق جب جیسی ضرورت ہوئی ویسے ویسے قرآن پاک کا نزول ہوتا. یہ ہے تاریخ کا ایک نچوڑ قرآن مقدس کی تاریخ، جس سے میں نے آپ کو بتایا. اب آپ اسے آج ہی کا دن ہے، آج ہی کی رات ہے جب قرآن مقدس کا نزول ہوا تھا. اسی کا تذکرہ ہے اس سورہ پاک میں جو میں نے تلاوت کی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. اس کی ایک ساعت ہزاروں ساعتوں کو بھاری ہے. تو یہ لیلۃ القدر ہے، اور آج کی رات یہ لیلۃ القدر والی ہے. تو آج ہی قرآن مقدس نازل ہوا ہے اور آج ہی رات کے بعد. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اور آپ کو بھی اس پہلو پر سوچنا چاہیے، اور میں اپنے علماء احباب کو اکثر جب آپس کی مجلسی گفتگو ہم لوگوں کی ہوتی ہے تو اس میں اسے کھیلتا ہوں کہ ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرو. دیکھیے جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں قرآن کے پڑھنے والے کم تھے، ٹھیک نہیں تھے؟ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس زمانے میں قرآن کے پڑھنے والے کم تھے اور قرآن کے ختم کرنے والے تھے. لیکن اس کے باوجود اسی قرآن کو ہاتھ میں لے کے جب وہ آگے بڑھے ہیں تو اس سے پہلے وہ عرب کے بدو کہے جاتے ہیں، لیکن چند ہی سال نہیں گزرنے پائے تھے کہ چوتھائی دنیا پر وہ عرب کے بدو قابو ہو گئے، ہے نا؟ جدھر کا رخ کیا دنیا نے گھٹنے ٹیک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ وہی اگر قرآن ہے جو اب سے 1400 برس پہلے تھا اور جسے مسلمانوں نے اپنے بغل میں دبا کر اور سینے میں محفوظ کر کے آگے بڑھ کر ساری دنیا پر قبضہ کیا تھا، اگر یہ وہی قرآن ہے تو آج اسی قرآن کو ان سے زیادہ پڑھنے والے، ان سے زیادہ تعداد میں پڑھنے والے اور ختم کرنے والے آج موجود ہیں. وہاں تو مہینوں میں ختم ہوتا تھا اور یہاں تو نہ جانے کروڑوں ختم ہوتا ہوا. پڑھنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے ماشاءاللہ. ایک ایک مسجد میں اس زمانے کی تعداد سے زیادہ لوگ آپ کو نظر آ گئے. لیکن اس میں وجہ کیا ہے کہ اسی قرآن کو لے کر وہ آگے بڑھے تو کامیاب رہے، اور اسی قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، دن رات تلاوت کر رہے ہیں، ختم کیے جا رہے ہیں، لیکن نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم خود ہی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیوں ہے نا؟ کوئی بات، کوئی چیز ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کر ہماری قوم آگے بڑھی تھی اور اسی قرآن کو آج ہم ان سے زیادہ پڑھ رہے ہیں،
उनसे ज्यादा तिलावत कर रहे हैं, उनसे ज्यादा नमाजें पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हमारा जो हाल है दुनिया में वो जाएगा। आप जरा दुनिया के जोग्राफिया पे नजर डालिए, क्या कुछ नहीं हो रहा, इराक में क्या कुछ नहीं हो रहा है, फलस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा है, कश्मीर में क्या कुछ नहीं हो रहा है, और बोस्निया में क्या कुछ नहीं हो रहा है, चेचनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा है, कुफा में क्या कुछ नहीं हो रहा है। जिधर देखो, हालांकि हमारी कसरत, हमारी तादाद ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यही समस्या है। मुझे एक हदीस याद आ गई, ये मिशकात शरीफ और अबू दाऊद की रवायत है, हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि सहाबा किराम की मजलिस की आकाए नामदार सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं, हालात हाज़रा पर और माज़ी और मुस्तक़बिल पर तबसरा हो रहा होगा। जैसे आज हम बैठते हैं तो अपने हाल, अपने माज़ी और अपने मुस्तक़बिल के बारे में बातें करते हैं ना आपस में, तो सहाबा किराम की मजलिस है, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, हालात हाज़रा पे गुफ्तगू हो रही है, मुस्तक़बिल के बारे में गुफ्तगू हो रही है, माजी के बारे में गुफ्तगू हो रही है, कल क्या हुआ है, आज क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, ये सारी बातें चल रही थी। तो जैसे आज हम अंदाजा लगाते हैं कि चंद दिन में रूस ये करने वाला, अभी का ये करने वाला, इसका ये होने वाला, वो होने वाला, लेकिन हमारा समझना और हमारी बातचीत जो होती है ना, वो अटक अच्छी होती है, अंदाजे की। एक अंदाजा है कि शायद 2 महीने के बाद फला हुकूमत ये कदम होती है ना, लेकिन आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमाते थे वो यकीन के साथ था, इसलिए कि वहाँ ज़न्नियात का कोई गुजर ही नहीं। वो अल्लाह के रसूल जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने माजी, हाल और मुस्तक़बिल सब पर उनके उलूम को हावी फरमा दिया। कल क्या था वो भी उनकी नजर में, आज क्या है वो भी उनकी नजर में है, और कल क्या होगा वो भी उनकी नजर में। तो जो रसूल इतनी वसी नजर रख रहा हो, वो जो कुछ कहेगा वो सही कहेगा, देख के कहेगा, उसमें कोई शुबहा नहीं है, और है भी सही। देखिए वो फरमाते हैं कि वो सहाबा किराम की मजलिस थी, सरकार बैठे हुए थे और बातें हो रही थी कि इतने में आपको इरशाद फरमाया कि एक दौर वो आने वाला है कि जब बातिल कुव्वत है, यहूदियत और नसरानियत, मजूसियत, मुशरिकी, जितने बातिल परस्त फिरते हैं वो सब के सब मुसलमानों को मलियामेट करने के लिए और खत्म करने के लिए इस तरीके से इकट्ठा हो जाएंगे और एक दूसरे को यूं दावत देंगे जैसे दस्तरखान पर बैठकर खाने वाले खाने को सुना करें, और एक दूसरे को बुलाते हो तुम भी खाना हो, तुम भी खाना हो। ये हदीस की रवायत है, मिशकात शरीफ की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है। आप अंदाजा लगाइए कि 1400 बरस पहले अल्लाह का रसूल ये बता रहा है कि एक वक्त वो आएगा कि जब मुसलमानों को खत्म करने के लिए बातिल कुव्वतें इस तरीके से एक दूसरे को दावत देंगी जैसे तुम दस्तरखान पर लोगों को खाने की दावत दिया करो। ईमान से बताओ मेरे दोस्तों, क्या आज मेरी सूरत हाल नहीं? जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालो ना, तो तुम्हारी आंखों के पर्दे उठ जाएंगे और पता चलेगा कि मेरे रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी सही बात फरमाई कि वो वक्त आएगा कि जब लोग इस तरीके से मुसलमानों को खत्म करने के लिए एक दूसरे को दावत देंगे जैसे दस्तरखान पर लोगों को दावत दी। अमेरिका अलग बुला रहा है, वो रूस को बुला रहा है, रूस हिंदुस्तान को बुला रहा है, वो फला को बुला रहा है, कोई चीन को बुला रहा है, सारे इकट्ठा हो रहा है और हम हैं कि सारे मतलब हमारे हुक्मरानों को इसकी फिक्र ही नहीं है, सिर्फ अपनी
पहला। तो जो सहाबे कलाम बैठे हुए थे उस वक्त के इक़्तिदार के पेश नजर उन्हें बड़ी हैरत थी। आज तो हमारा ये आदम है कि बैठे हुए मक्के और मदीने में है और उन वक्त की सल्तनतें हमसे टॉप रही हैं, हम यहाँ बैठे हैं, ईरान का बादशाह हमसे लड़ना बरंदाम है। तो क्या ऐसा भी वक्त आ जाएगा कि लोग हमको लुत्फ़ बना लेंगे? तो वो पूछ पड़े, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम लोग बहुत थोड़े रह जाएंगे? क्या बहुत कम रह जाएंगे तादाद में? बहुत कम रहेंगे? हुजूर ने साथ हुआ नहीं, उस वक्त तो तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा तुम्हारी तादाद हो जाएगी। तो फिर या रसूल अल्लाह, फिर ऐसा क्यों होगा? फिर ऐसा क्यों होगा? आज तो हम थोड़े थे, है ना, लेकिन उसके बावजूद पूरी बातिल हुकूमतों पर हम गालिब हैं। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा होंगे तो हमें और ज्यादा गलबा हासिल होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों है? तो आपने इरशाद फरमाया कि बात ये है कि उस वक्त तुम लोग, वो मुसलमान ज्यादा तो होंगे, लेकिन वो ऐसे होंगे जैसे पानी के बहाव पर खसो फासाद के तिनके होंगे। अंदाजा लगे, पानी बह रहा होता है तो उसमें तिनका डाल दीजिए तो जिधर चाहे पानी में निकल आएगा। तो आपने फरमाया कि उस दौर में मुसलमानों की यही हालत थी। तो क्या यही हालत नहीं आ जाती? कौन सी हमारी ऐसी हुकूमत है पूरी दुनिया में कि जो इस्तिक़लाल के साथ अपने पांव पर खड़ी? कोई नहीं। सब इसी पानी के बहाव पर चल रही है। कभी अमेरिका की तरफ जा रही है, कभी रूस की तरफ जा रही है, कभी चीन की तरफ जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कोई ठिकाना ही नहीं है। पूछने वाले भी अल्लाह तबारक व तआला हजार हजार रहमतें उनको नाज़िल फरमाए कि हमारे लिए कितना आसान कर दिया सब कुछ समझना। फिर उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों होगा? तहज्जुब की बात है, आज हम इतने मजबूत हैं, उस वक्त हम ज्यादा हो जाएंगे तो उस वक्त इतने हल्के फुल्के क्यों हो जाएंगे? तो आपने फरमाया कि इसलिए कि उस वक्त लोगों के दिल सुस्त है। तो उस दौर के लोगों के लिए ये बड़ी अजीब सी बात थी कि मुसलमान और उसका दिल सुस्त हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। बड़े तहज्जुब से, या रसूल अल्लाह, सुस्ती क्या चीज? वो सुस्त हो जाएंगे, इसका क्या मतलब? तो आपने साथ हुआ कि सुस्ती का मतलब ये है कि लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाएगा, वो दूसरों से खौफजदा हो जाएगा। अच्छा, ये तो है। और इसी आईने में अंदर आपकी तस्वीर हम आप देख लें कि आज यही कुछ नहीं है। आज सारी दुनिया में अगर कोई खौफजदा नजर आ रही है तो सिर्फ मुसलमान है। जहां है वो पिटे जा रहे हैं, जहां है वो सताए जा रहे हैं, जहां है ये लूटे जा रहे हैं, है कि नहीं है? मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब से 1400 वर्ष पहले ही तो ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि हमने कुरान मुक़द्दस के मक़सद नुज़ूल को पसे-पुश कर दिया। कुरान इसलिए नहीं नाज़िल हुआ था कि आप सिर्फ मस्जिदों में बैठ के एक पारा दो पारा की तिलावत कर लिया, इसलिए नहीं हुआ था कि रात को बैठ के तिलावत कर लिया। कुरान मुक़द्दस की तिलावत बहुत बड़ा सवाल है, बेपनाह इस पर अजर सवाब मिलेगा, लेकिन इसके लिए ये नाजिल नहीं किया गया। कुरान नाजिल किया गया है, असल में कुरान एक दस्तूर हयात, एक मुकम्मल निज़ाम जिंदगी है। कुरान इसलिए नाजिल किया गया था कि कुरान की रोशनी में मुसलमान अपनी जिंदगी को संवारे और उसी के मुताबिक अमल करें। लेकिन हमने अमल करना छोड़ दिया कुरान पर। कुरान को हमने एक मुतबर्रिक किताब की हैसियत से पेश किया है ना, दुकान में रखा हुआ है, उठाया तो लगा दिया है। चलो बहुत एहतराम किया तो बेवजूद उसको छूटे नहीं है। बहुत ज्यादा अगर हम शौक हुआ तो बैठ के
पारे दो पारे की तिलावत करनी है, साल भर में तरावियों में पूरा कुरान सुन लिया, यही तो होता है। ये बताइए, ईमान की बात बताओ मेरे दोस्तों, आज इतने ज्यादा कुरान से हम कुछ हासिल कर रहे हैं यार, क्या आदमी और तो कुछ नहीं ना, घर में रखा हुआ बरकत के लिए है, मस्जिद में तिलावत करने के लिए, बस इतना ही कुछ हम उससे हासिल कर रहे हैं। यानी इससे जो बालाई सवाब था और बालाई चीजें थी वो तो हम हासिल कर रहे हैं, और असल बुनियादी मकसद जो था उसे हमने मलियामेट कर दिया है। मकसद ये था कि कुरान जो कहे उस पर अमल करो, अपनी जिंदगी को कुरान के सांचे में डालो। कुरान कहता है कि माँ आता तुम रसूल रसूल तुम्हें जिस चीज का हुक्म दे उसे तस्लीम करो, जो दे उसे ले लो, और जिस चीज से मना करे तो वादा। लेकिन हम नहीं करते, हम वो करते हैं जो हमारी समझ में आता है। नमाज 5 वक्त की पहुंचते हैं, 8 बजे के बाद एक मतलब जीने के लिए चले आते हैं तो सजदा कर लेते हैं। बहुत अल्लाह ने तौफीक दी और कुछ हमारे हालात अच्छे हैं तो मस्जिदों मदरसे पर जरा कुछ सदका कर दिया है, कुछ चंदा दे दिया, तो हमने समझा कि बहुत बड़ा तीर मार भाई। क्यों? यकीनन कुरान का पढ़ना और कुरान का रखना और कुरान का सीखना और सिखाना ये बहुत बड़ी बात है, और इसका बहुत बड़ा अजर है। और बहुत बदनसीब होगा वो शख्स जिसके घर में कुरान हो और कुरान वो न पढ़ता, वो बहुत बदनसीब इंसान होता है जो कुरान की तिलावत नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद उसको समझने की कोशिश करें, कुरान हमसे क्या मुतालबा कर रहा है ना, उस पर हमें अमल करना चाहिए, और उसके लिए आपको इल्म हासिल करना होगा। ठीक है, आप आज जो बड़े बूढ़े हैं वो ये उम्र करके निकल जाएंगे कि साहब अब हमारी उम्र ही क्या, तो क्या साहब कराम जो ईमान लाए थे बच्चे थे, बताइए ना, कभी इस पहले तो नहीं आपने किया। बड़ी आसानी से लोग कह देते कि वो साहब अब 50 बरस की उम्र हो गई है क्या। अच्छा ये बताओ कि 50 बरस का कोई सहाबी ईमान लाया था कि नहीं लाया था, है ना? 70 बरस के सहाबी ईमान लाए थे कि नहीं लाए थे? जब ईमान लाए उसके बाद ही तो उन्होंने कुरान पढ़ा होगा ना, वरना उससे पहले तो कुरान पढ़ने का सवाल ही नहीं था। उससे पहले तो कुरान की मुखालिफत लोग कर रहे थे, कुरान पढ़ने वालों पर जुल्म व सितम ढाए जा रहे थे। तो मालूम ये हुआ कि ये उज़्रे लंग है, और ये वही बात है जो मेरे आका ने फरमाया कि उस वक्त दिल गाफिल हो जाएंगे, सुस्त पड़ जाएंगे। तो एक बहाना तलाश कर दिया कि उम्र ज्यादा हो गई यार, तुम क्या पढ़ेंगे और क्या समझ। अरे क्यों नहीं समझ पाए? वो लोग समझ रहे थे तो आप पूरी कोशिश करेंगे तो समझेंगे। अच्छा दूसरी बात ये है, माफ कीजिएगा, बरतानिया में आने के बाद कि जितने बूढ़े बूढ़े हैं कि हमसे ज्यादा कानून जान गए। हाँ सही बात है, ठीक है ना? क्यों जान गया? आप पढ़ने गए थे किसकी कॉलेज में? नहीं गए थे, लेकिन आपको लगन होती है, इसलिए कि आपको जरूरत पड़ती है। कभी बेटे को बुलाना है, कभी भाई को बुलाना है, कभी बेटा को बुलाना है, कभी भतीजे को बुलाना है, कभी और किसी रिश्तेदार को। तो कानून चाहे लाख बदलता रहे, आप उसके पीछे पड़े रहते हैं मालूमात हासिल करना है। आज क्या कानून बना, कल क्या कानून बना, परसों क्या कानून बना, अब क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज में जाके तालीम हासिल करें, कानून पढ़ें और बैरिस्टर बने और वकील साहब बने, है ना? बहुत सारे कवानीन तो आप इतने जानते हैं कि वकील को भी आप बताते हैं जाके वकील का वैसे करो हो जाएगा, आप नहीं समझा। वो क्यों? इसलिए कि सच्ची लगन होती है आपके दिल में उसे मालूम करने की, तो कहीं ना कहीं से आप निकाल ही जाते हैं। अगर यही लगन कुरान के मुताबिक आपकी पैदा हो जाए कि कुरान ने हमसे क्या मुतालबा किया है, तो कोई मौलवी ऐसा नहीं होगा कि वहाँ आप कभी 12 बजे कभी 1 बजे रात को दरवाजा खटखटाएंगे, मौलवी साहब ये आए थे करीब आयात मैंने पढ़ी थी, इसका क्या मतलब समझाइए। तो कभी गए तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्यों नहीं जरूरत पड़ती? आप समझ रहे हैं तो जरूरत नहीं, लेकिन समझ में उस वक्त आएगा जब समझने का वक्त खत्म होगा। ये जिंदगी बहुत आरजी है, इस वक्त कुछ हासिल कर लो, जितना भी हो सके
कुरान के मुताबिक मालूमात हासिल करो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। दूसरों पर भी जो करम वाले मुझे ये बताना है कि आज की रात आज की रात बख्शिश वाली रात, आज की रात बहुत ज्यादा रहमत व बरकत की रात और इस रात से अगर हमने साल भर गफलत की है तो कम से कम आज तो कल तक अगर आप गाफिल थे और आपको नहीं पता था तब आज तो आप नहीं कर सकते, कहीं नहीं पता, इसे हम बता रहे हैं। तो हम तो अपना फर्ज अदा किए देते हैं। कल क़यामत में अब आप ये नहीं कह सकेंगे कि परवरदिगार आलम हमें मालूम नहीं है ना। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की रात नफरत की रात है, तौबा की रात है। आज अपने परवरदिगार से अपने माजी की तमाम कोताहियों की तलाशी मांगो। माजी ने जो कुछ भी किया है अपने रब से आज से बख्शवा लो और आइंदा के लिए अपनी कमरे हिम्मत बांध लो और मजबूती के साथ कहद कर लो कि परवरदिगार आलम आइंदा हम कभी भी तेरी नाफरमानी की तरफ नहीं जाएंगे और हमेशा तेरी और तेरे रसूल की इताअत और फरमाबरदारी की हद तक इंसान कोशिश करते हैं। लेकिन वो बख्श दे हजार हाथों के सामने मेरी खता न सही, हजार हाथों के काबिल मेरी खता न सही, जब उन लोगों पर हंसी आ गई तो क्या करूँ। आज की रात अगर हमने अपने रब की बारगाह में अपने दिल का दुखड़ा सुना दिया और आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर उसकी बारगाह में अपनी भीगी पलकें लेके हाजिर हो गए, यकीनन परवरदिगार आलम हमारे खताओं को बख्श देगा। इसलिए एक फलसफा है, देखो आज की रात बख्शिश यकीनी है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ यकीनी है? इसलिए कि कल तक जो दुआएं हम मांगे कल तक देखिए, हम आदमी दुआ मांगता है ना नमाज के बाद, हमेशा आदमी अपने लिए मांगता है, अपने अहलियात के लिए मांगता है, अपने बाल बच्चों के लिए मांगता है, मुताल्लिक़ीन के लिए मांगता है, सबके गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ करता है और कुछ नहीं करता तो कम से कम नमाज के बाद पढ़ता रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, है ना। सब जहन्नम से निजात का के लिए मांगते हैं, लेकिन ये उसकी मर्जी दे चले नहीं, किसी का सामना है। अल्लाह तबारक व तआला पर किसी का पर्दा तो नहीं है ना। अरे मांगा आपने, दिया दिया न दिया, है ना। इसकी मिसाल में समझ में आएगी बात आपको। आपके दरवाजे पे यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या उसी जगहों पर आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक सैकड़ों भीख मांगने वाले दरवाजे पर आए, दरवाजे पर सदा लगाई अल्लाह आपका भला करेगा, आपको जो कुछ हो सका उनको सुनवाई। और कभी कभी कह के सुनगा मारता, ये कहते हैं ना अदब से। जब एक बात और आपको बताऊं, जब कभी कोई गरीब फकीर आपके दरवाजे पर कायम न जाए, याद रखिए कि या तो इसके दिल या बहुत इज्जत और एहतराम के साथ माफी मांगे, जो कार आना नहीं कभी जरूरत न जाने उस लिबास में कौन हो, हमेशा ही आने। तो आप यही करते हैं या तो दे देते हैं या कहते हैं साईं बाबा मांगता हूं, या कह देते दूसरे होता है ना, वो बेचारा वापस चला जाता है, कहता है तो नहीं, वो तो आए देता वो निकल जाता। लेकिन एक फकीर चला जा रहा है और तुम्हारे समझ दो क्या है, कल सुबह आ जाना मैं तुम्हें पूछूंगा, है ना।
उस बेचारे को रात भर नींद नहीं आई है, नींद नहीं आई है। अब सुबह सवेरे वो पहुंचा आपके दरवाजे पर, अल्लाह भला करे शेर साहब, यार तुम चले आए दवाई तो होता है बहुत नहीं। अभी बताइए कि फकीर कुछ कहेगा कि नहीं कहेगा? मैं कहता हूँ सीधा होगा ना, दिल का जरा कुछ कहेगा तो रात भर सोने नहीं दिया, सुबह सुबह बुलाया और बुलाने के बाद देते भी नहीं है। अब रास्ते में सुन बोला कहा भाई सारी लोग कहा है आप आगे उतना बुरे ले जाओ। अरे साहब क्या लगा ये बनते सेठ से बुलाया था मुझे, सेठ लाना दूंगा, आज आया तो वापस कर दिया, कुछ नहीं दिया। अब रास्ते था तो कहता चला, यही होता है ना। बिल्कुल आप वाली बात पता हुआ कोई अभी पुराना ठीक है, समझ आ रहा है ना। बिना कल से ये रात एक ऐसी रात है जिसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, हदीस से पूछती है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि कौन है जो मुझे आवाज दे, है कोई मुझे पुकारने वाला और मुझे आवाज देने वाला, तो मुझे आवाज दे मैं उसको जवाब दूंगा। कोई मांगने वाला है, मनीष साहिब कोई मांगने वाला है तो मांगे मुझसे, आज मैं उसे दूंगा। आओ मुझसे आज मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और आगे फरमाता है कोई अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहने वाला तो आज आए मुझसे मग़फ़िरत मांगे, आज मैं उसके गुनाहों को बख्शूंगा। सिर्फ जी नहीं बुला रहा है, ये रब्बुल अरबाब बुला रहा है, क़ादिर इस्लाम बुला रहा है, परवरदिगार आलम बुला रहा है, जो सारी कायनात का पालनहार है, जो अहकमुल हाकिमीन है, कोई उस पर पाबंदी नहीं लगाने वाला। उसने बुलाया है और वो बुला रहा है कि आज की रात आओ मैं तुम्हें दूंगा, जो भी मांगो। उसने आया है कि यस आलो, कुछ भी मांगे मैं दूंगा। मग़फ़िरत तलब करेगा मग़फ़िरत दूंगा, कोई चीज मांगेगा उससे आता कर लिया जाएगा, कुछ भी मुझसे पूछेगा उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो जब उसने बुलाया है तो ऐसे वापस कर देगा। ये अपने दरवाजे की लाज और अपनी बात की लाज को हर आदमी है। अगर आपने किसी को वसंत बुला लिया और कहीं आपसे दो चार जवान बेटे बिगड़ गए कि अरे यार आप सत्या गए दादा, आप बाबा सत्या गए यार, कितना पैसा का है पता चला है ना, तब भी कहेंगे कि अरे बेटे अच्छा आपकी मतलब तो मैंने बुला लिया है, आइंदा नहीं बुलाऊंगा, यही नहीं कहेंगे। मतलब अपने दरवाजे की लाज है और अपने वक़ार को महफूज रखने के लिए बहरहाल उस वक्त आप मुझसे कुछ देंगे क्योंकि आपने बुला लिया है बेइज्जती हो। तो अगर एक आम इंसान अपनी लाज रखने के लिए बुलाए हुए फकीर को खाली हाथ वापस नहीं करता, तो अहकमुल हाकिमीन के बारे में क्या ख्याल है कि वो अपने गरीब बंदों को, मुहताज बंदों को और गुनहगार बंदों को मग़फ़िरत के लिए बुलाए और फिर मग़फ़िरत नहीं करेगा, देने के लिए बुलाओ खाली हाथ वापस कर देगा? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, साल भर में किसी रोज चाहे कोई दुआ ना कबूल हो, लेकिन लैलतुल क़द्र में जब दुआ मांगी जाती है वो बिला शुबहा और यकीनन कबूल होती है। ये हमेशा याद रखना। ये अलग बात है कि हमारी और आपकी निगाहें देख नहीं पाती, महसूस नहीं कर पाती, इसलिए कि मग़फ़िरत का मामला तो मांगने के बाद आएगा। तो हम ये समझते हैं यार पता नहीं रात भर पढ़ता रहा कबूल हुई कि नहीं बात, रात भर कुरान पढ़ता रहा पता नहीं परवरदिगार आलम इसे कबूल भी किया कि नहीं। इसीलिए मैंने ये हदीस सुना दी है, ऐसा न सोचना, इसलिए कि आज तुम बुलाए हुए आए हो यार, बिन बुलाए थोड़ी आए हो। बुलाया हुआ फकीर का जो खाली हाथ वापस नहीं किया जाता, बिन बुलाए जब आते हैं तो सेठ की मर्जी होती है, जी चाहे दे दे, बोले वो डाल दे, जी चाहे न डाल। समझ गई? तो ये है लैलतुल क़द्र आज की रात। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस रात की बरकतों से हमें मालामाल होने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी वल करम वालिल किराम अजमईन व बारिक व सल्लम अबदा। हम तो बड़े खुशनसीब लोगों में से हैं जो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का दामन मसूर हुआ। बड़े खुशनसीब लोग, इसलिए कि सिर्फ हम ही अपनी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं तो ठीक है, गुनहगार की आवाज भी क्या कहाँ तक पहुंचेगी, चलो यही मान लेते है ना। लेकिन हम तनहा नहीं अपनी नफरत के लिए मानेंगे, हमारे साथ कोई और भी हमारी बख्शिश की दुआ करने वाला है। हम तनहा नहीं मांग रहे हैं, हम तो कम मांग रहे हैं, हमसे ज्यादा हमारी बख्शिश की दुआ किसी और को है, और वो है कि जिसकी बात पर वो निगाह वाले मदद नहीं करते। जो बात उनके मुंह से निकलती है उसे परवरदिगार आलम कबूलियत का दर्जा अता फरमाता है। वो दाताए कायनात जनाब मोहम्मद सुनो जरा कि सरवरे कायनात को अपने उम्मत की मग़फ़िरत की कितनी फिक्र है, कितनी फिक्र है। कहते हैं कि जब पहली वही नाज़िल हुई है तो उसके बाद वही का सिलसिला कुछ दिनों के लिए रुक गया। इसे जमाने की तरफ बोलते, कुछ दिन तक वही नहीं आ रही। अब सरकार को बड़ी फिक्र हो, मेरा लोग मुझसे नाराज है, ये सिलसिले क्यों खत्म है तो फिक्र की बात है ना। सिलसिला गुफ्तगू मुहिब्बो महबूब में शुरू हो चुका था, फिर बंद हो गया जमाना। तो सरकार बहुत परेशान थे, रात रात भर परेशान रहते थे। यहाँ तक के हदीसों में आया है कि हुजूर पहाड़ के ऊपर चले जाते तो खतरा ये होता था कि कहीं अपने आप को वहां से गिरा दें, इतने बेकरार। जब बेचैनी और बेकरारी हद से बढ़ गई, बहुत ज्यादा बेकरारी बढ़ गई, तो अचानक जिब्रील अमीन दाखिल हुए और परवरदिगार आलम का सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करते हैं बद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला ये वही के लिखने के बाद सबसे पहली वही आई कसम परवरदिगार आलम जल्ले जलालहू अम्मन वालू कसम याद करना रहा है कि महबूब आपके चेहरे अनवर की कसम है, आपके जुल्फों की कसम है, आपका रब आपसे नाराज नहीं हुआ है और नहीं उसने आपको छोड़ा है। माँ बता है रब्बुका वमा क़ला, न आपके रब ने आपको छोड़ा है और न ही आपसे रुख मोड़ा है और न वो नाराज है। अरे ये तो मसलहत है। मगर आखिरत तो खैरुन लका मिनल ऊला, परवरदिगार आलम की रहमतें तो आप पर इस कदर बेपनाह है कि आपकी हर आने वाली साहब पहली साहब से बेहतर होती है। और उसके बाद वनसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, मेरे महबूब आपका रब आपको अनकरीब इतना अता फरमाने वाला है और इतना दे देगा कि आप राजी हो जाएंगे। आज आप जो परेशान है कि इतना आपको अता कर दिया जाएगा कि आप खुश हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे। अंदाजा लगाइए, सारी दुनिया परवरदिगार आलम को राजी करने की फिक्र में है और परवरदिगार आलम इनको राजी कर रहा है। ये है मकाम मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। लेकिन कुर्बान जाइए सरकार, उन्होंने भी अपनी सारी जिंदगी और जिंदगी की सारी राहतें और सारी खुशियां अपनी अपनी उम्मत के लिए कुर्बान कर दी। मालूम है क्या हुआ? जैसे ही जिब्रील अमीन ने ये आयत करीमा सुनाई, वनसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, ए महबूब अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो। तो आप फर्क के पूछते हैं, अच्छा मेरे रब ने ये फरमाया है? हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, ये आयत करीमा में लेके आया हूँ, अल्लाह ने ये पैगाम आपको भेजा है कि आपको इतना दिया जाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो आप बर्दाश्त फरमाते हैं तो दूसरी जबान मैं उस वक्त तक अपने रब से राजी नहीं हूँगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती में बख्श दिया जाए। अगर मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रह गया तो मैं अपने रब से राजी नहीं रहूंगा। तो गवाह है।
मुआवजा है। परवरदिगार आलम एक वादा कर रहा है और रसूल उसके उस वादे को एक्सेप्ट कर रहे हैं और गवाह किसको बना रहे हैं? जिब्रील को बना रहे हैं, जो तमाम फरिश्तों के सरदार है। कितना मुबारक और कितना मजबूत किया है लोग, अच्छी सुबह है कि अच्छा सुनो। अब कहीं कोई अगर जिंदा ईमान वाला ये न कह दे कि भैया ठीक है ये बात आई गई होगी, रसूल ने कह दिया पता नहीं क्या होगा। तो सुनो इस पर मैं बताऊंगा। हदीस शरीफ में आया है क़यामत के मैदान में अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफाअत फरमाएंगे अपने गुनहगारों की, वो तो आपने 12 सुना होगा कि कैसे शफाअत करेंगे, मुझे उससे नहीं, मैं सिर्फ वो बात बताऊं जिसका तल्लुक। जब हुजूर शफाअत फरमाएंगे तो शफाअत फरमाते रहेंगे और गुनहगार उम्मत जहन्नम से निकलती है। एक खेप निकली, 2 खेप निकली, ये निकले, वो निकले, सब निकलते हैं। और जब कुछ उम्मती निकलते जाएंगे तो परवरदिगार आलम फरमाएगा कि मेरे महबूब और निकालो। वादा था जब तक आप राजी नहीं होंगे, है ना, हम आपको राजी जरूर करेंगे, लेकिन रब राजी कर रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो वादा रही हुआ है, कल क़यामत में उसका क्या अंजाम होगा वो देख लिया कि रब अपने वादे के मुताबिक अपने महबूब को राजी कर रहा है और महबूब ने सजदे में सर रख दिया है। परवरदिगार आलम मेरी गुनहगार उम्मत जहन्नम में जा रही है, उसे बख्श दिया जाए। वहां से हुक्म होगा उन्हें हमने माफ कर दिया, लेकिन अभी सर नहीं उठाया जा रहा, सब नहीं उठाया जा रहा, एक बख्शे जा रहे हैं। तमाम जब उम्मतों के तमाम गिरोह एक से एक गुनहगार निकल जाएंगे, पहले छोटे गुनाह वाले, उससे बड़े गुनाह वाले, उससे बड़े गुनाह वाले। अब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाए, सजदे से सर उठाया तो परवरदिगार आलम की तरफ से होगा कि मेरे महबूब और भी निकाल लो जहन्नम से जिनको निकालना है। तो इरशाद फरमाएंगे, अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम, ये परवरदिगार आलम अब तो जहन्नम में कोई रही नहीं है, मेरी उम्मत में इल्ला मन हदसहुल कुरान। अब तो जहन्नम में सिर्फ वही लोग रह गए हैं जिस पर कुरान ने जहन्नम को वाजिब करार दे दिया है। अब मेरे कलमा पढ़ने वाले इस जहन्नम में नहीं रह गए हैं, सब निकाल लिया ना। तो ये है, तो जब हमारी पुष्प पर हमारे हक में अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मग़फ़िरत चाहने के लिए दस्तबदुआ है, तो फिर ये अब किस बात की देर है कि हम दुआ करके अपने आपको तो बख्शवा दे, ये बदनसीबी नहीं होगी। अरे बेसहारा अगर आदमी हो चला जाए तो चलो भाई, कोई सहारा नहीं, लेकिन हमारा शफी मौजूद है। लेकिन अब आप ये चाहें कि कोई काम वही करें, गुनाह हम करें, बख्शवाए वो, हमें और क्या कुछ करना पड़े, तो ऐसा तो दुनिया में नहीं होता है। मुजरिम को तो बहरहाल अपने जुर्म की माफी मांगनी पड़ेगी ना, जब ही तो कोई बड़ा आदमी उसकी सिफारिश करेगा जाके अदालत में। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मुजरिम अपने जुर्म पर डटा रहे और सिफारिशी जाके अदालत से बार बार सुनाता रहे, वो तो नहीं होती। तो मेरे भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अपनी मग़फ़िरत तलब करते रहो और इस यकीन के साथ तलब करते रहो कि तुम्हारी दुआ यकीनन परवरदिगार आलम रद्द नहीं फरमाएगा, जरूर कबूल फरमाएगा। और अगर बिलफर्ज शामत अमाल से हमारी आवाज अर्श इलाही तक न भी पहुँच सकी तो परवरदिगार आलम के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मजबूती से हाथों में हमारे है, यकीनन वो हमारी सिफारिश करेंगे। ये है मेरे दोस्तों आज की रात और आज की रात की अजमत। मैंने कुरान मुक़द्दस की जो सूरह करीमा तिलावत की थी
उस सूरह करीमा में इस रात की फजीलत बयान करवाई गई है और ये बताया गया है कि ये रात 1000 महीनों की रात से बेहतर होती है। और ये कब तक रहती है? सूरज के गुरूब होने से लेकर के सेहरी के वक्त तक। ये जो सेहरी आप बंद करते हैं ना, जिसको हम लोग साजिद कहते हैं, बस वहां तक ये रात है। तो अब आज देख लो कि 10 तो हो चुके हैं, है ना, और तकरीबन 6 बजे आप सेहरी बंद कर देते हैं, कुछ लोग 10-5 मिनट है। तो बस ये सिर्फ 8 घंटे रह गए। अब इसी वक्त किस्मत कमाने जा रहा है ना। और मैं इससे ज्यादा भी वक्त नहीं लेना चाहता। अब यही बात सबको कर देता हूँ, लखेंगे तो ज्यादा रखें दिया आपने तो दोबारा जब हाथ बनाने मिलते हैं करवाएंगे। मैं जानता हूँ 5-7 मिनट नहीं है, आप दुआ कीजिए कि हमें निकाल वाला मैं और आपको अपने अपने रसूल के हिसाब से सुनना करवाएंगी और फिर अपने और आने का बड़ा रखा